کہ انہیں اپنے لازموں کو لے کر جو خود ڈالیں وہ لوگوں کو ایک سمت ملے گی کہ ہمیں بھی اپنے ہمیں نا ماشاءاللہ بہت غریبوں کا خیال کرتے ہیں. کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی, کسی کا نلکا لگوا دیا, کسی کو موٹر لگ گئی, کسی کا کیا, لیکن ہم شو نہیں کرتے. یہ جو چیزیں وہ اس میں بھی آپ کو میں نے تھوڑا گائڈ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے اگر 10 بندوں کو کہا نا کہ یہ نلکا لگوانا ہے, اس میں آپ نے ایک دن وزٹ کرا ہے, وہاں جا کر خود آپ نے اپنی پکچر کرا دی, یہ کام کرنا. اس کا ہوگا کیا کہ جو آدمی ایک اللہ کے راستے میں ملی چیز کا مس یوز کرتا ہے اس کے حوصلہ شکنی ہو جائے گا, اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرے حصے میں پہ لگ کے. الحمدللہ ہم لوگ تو ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے ہیں اور اللہ نے اتنا اپنا خوف بھی ڈالا ہے. ابھی ہم صدقہ زکات دیتے ہیں, ہم نے کبھی اپنے حساب سے دی نہیں. ابھی اوکے تو نہیں کیا پہلے چلو ماشاءاللہ ہم تو ثابت گائیڈ دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بھی ہم گن گن کے دیں گے, اللہ ہمیں گن گائیڈ دیتا ہے, تو ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ہم نے کبھی حساب کتاب نہیں رکھا کہ ہماری اتنی بندے ہم نے اتنے دینے, ڈبل دیتے ہیں, ڈبل سے ڈبل دیتے ہیں الحمدللہ. اور یہ سب انہیں کی دعاؤں اچھا میں مفتی صاحب اب میں آپ سے یہ بات پہلے پوچھوں کہ یہ شادی ہوئی آپ کی کتنے سال؟ 10 سال. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں میرے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, 4 چینل ہیں میرے, اور ان پہ جتنے لوگ میرے ساتھ مسلک ہیں ان کو یہ پیغام جانا چاہیے. ہمارے جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کہ میری بیگم سمیت آج کی میں بات کر رہا ہوں, کیوں کہتے پتہ نہیں مہینہ ہوا سال ہوا انہوں نے شادی کی ہے, تو اس پہ جو آپ کی بات ہو اتھینٹک ہوگی. نہیں الحمدللہ شادی کو 10 سال ہو گئے. اچھا 10 سال ہو گئے, 4 بچے ہیں الحمدللہ. لیکن وہ تمہیں پتہ ہے اللہ کا کرم ہے کہ لگتا ویکھے جیویں جے کل ہوئی ہے. میں مفتی صاحب آپ کو بتا میں تم دیکھ کے کیونکہ وہ الحمدللہ بڑا پیار ہے آپس دی تے بیوی بچیاں وا سرچ کرنا تے میں ایک گل کراں مفتی صاحب اینا پوری دنیا دی عورتوں نوں پیغام ہے میرا کہ بندے سارا کچھ کما کے لیاندے, اگر عورت نوں آندیا مسکران دی بجائے ویکھدے کہے میرا بلڈ لو ہے, میں بیمار ہاں, فلانی شے مکی, آٹا بھی مکا, گھیو بھی مکا, شیمپو بھی مکا, بندہ دا لے پھر میں بھی مکا. دیکھو نا بندے نے تو پھر آن کے بیماری ہونا. تو آپ کے جو پہلا میں سوال اس لیے لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں, میرے جو لوگ اٹیچ ہیں وہ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے میں نے اپنی بیگم کے کہہ دی کہ شادی مہینہ یا 6 ماہ ہوئی ہے جب سے آپ فیمس ہو گئے تب شادی کی. نہیں وہ فیمس اللہ والوں ہو گئے ہیں, شادی میں 10 سال ہو گئے ہیں. اچھا کہ بس وہ کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ ساڈی کوئی ویڈیو اسی کٹھی کو پائی ہوئے. اچھا انہیں کھانا پاندے رہتے اپنا کھانا تے گھر دے ٹیک کیئر واسطے ویڈیو پاندے رہتے ہیں. لیکن وہ عید تھی پچھلی عید تھی, انہوں نے پڑھ کے کلپ اپنا پا تھا, اور میں گڈی سے نکلے ہیں اگے گھڑے سے میں اندر چلی مہمان آئے ہیں, وہ کلپ پڑھ کے پاتا تے بس وہ کلپ میں پڑھ کے نہیں پاتی. کھانا کبھی کسی نے نہیں دیکھا. لیکن ناظرین میرے چاند میرے مکھن میری ملائی جتنے, آج میں اپنے چاند کی دعوت پہ آیا ہوں. تقی صاحب لاہوری میرا چاند ہے, ان کی اللہ نے فیمس اچھے نام سے کرا دی مفتی تقی. جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا پاکستانی پوری دنیا کی آن شان ہے, مفتی صاحب شیخ الاسلام ہیں بہت بڑے. تو ان کو تو پہلا ان پہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ان کے نام کے ساتھ جب مفتی لوگوں نے لکھایا نا تو چلو ایک اچھے انسان کے ساتھ نسبت ہوگی. دوسرا میں آپ کو پیغام دوں کہ مفتی صاحب کی زبانی تقی لاہوری صاحب میرا چاند ہے, جو عامر صاحب ہیں میرا چاند میرا مکر میری ملائی, ان کی شادی ہوئے 10 سال ہو گئے, میری شادی ہوئے بھی 10 سال ہو گئے, 11واں شروع ہے. تو میرے بچے 3 ہیں, ان کے بچے 4 ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے بچے کی ایک کی 10 سال عمر ہے, ایک کی 7 ہے, اس طرح 4 ہے, اس طرح 2. تو میری بھی اس طرح ایک بچے کی 10 سال ہے, ایک کی 6 ایک کی 4 ہے. تو آپ کو یہ پہلا آپ کو میں انکشاف کر دوں کہ یہ آپ نہیں نہ سمجھے شادی, یہ جتنی عورتوں نے ہوا ڈالا ہوا ہے نا کہ یہ مولوی اس عمر میں آ کر شادیاں کرتے ہیں, یہ آپ کول مائنڈ ہو جائیں خدا کے لیے. اتنی زیادہ سختی. اب میں آنے لگا تھا نا مفتی صاحب آپ کے پاس, تو میری بیگم کہتی خدا کے لیے اس کی صحبت میں نہ کرنا. تو آپ یہ ڈرتی جو ہے نا, میں ان سے اپیل کروں گا کہ یہ شادیاں 4 اسلام نے جائز قرار دی ہیں, اور اگر انسان امیر ہو تو وہ شادی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ایک غریب کے ساتھ آپ وہ شادی کرتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے کہ آپ کے پیسے سے اس کو فائدہ پہنچے گا, دوسرے خاندان میں اگر پھر کرتے ہیں اس کو فائدہ پہنچے گا تیسرے. تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں. باقی عمر کا بھی میں آپ کو کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے ٹائم
पहली आपकी 25 साल उम्र थी और माँ खदीजतुल कुबरा एक बेवा औरत थी और उनकी उस टाइम उम्र 40 साल थी। अच्छा मुफ्ती साहब आपकी उम्र कितनी? मेरी 50। अच्छा अब 50 है, शादी के टाइम 40 थी। हाँ देख लें नाज़रीन, मेरी उम्र इस टाइम 35-36 है, 35 साल। हाँ जी। तो इसका मतलब मुफ्ती साहब 40 के साल दे खतरा मुझे भी ये भाभी ना हो समझने के लिए, भाभी ने पहले तो वार्निंग दी थी है, हाँ जी। लेकिन मेरी 40 ही थी, बेगम थी मेरी 20 ही। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ जी जी ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, हाँ जी। ਮੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। आप भाभी तुझे बेफिक्र रहो, मेरी सोहबत नाल इन्हां नूं कोई खतरा नहीं है। मेरी सोहबत नाल अल्लाह ना करे कोई किसी ने भी खतरा होवे, लेकिन हाँ। ये ते माशाअल्लाह बहुत बड़े साडे तो माशाअल्लाह आलम दीन ने ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ। ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ और ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। और मैं भी भाभी से ये कहना चाहूंगी आप बेफिक्र रहे, मैं अपने मियाँ को भी इनकी सोबत में बताऊंगी क्योंकि जी। आप उन्हें अच्छा ट्रेन कर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताकि वे अच्छा पास भाभी आपकी वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप गरीबों के साथ भी अच्छा सलूक करती हैं। ये मेरी बेगम समेत सभी को पैगाम कोई आप दें, जितने लोग औरतें मुझे सुनती, बड़ी औरतें ज़्यादा सुनती हैं क्योंकि मैं सास के बयान करता हूँ, तगड़े जवाई दे माड़े जवाई दे कि तगड़े जवाई ना कि तू सलूक कर दे। तो आप बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, मैंने आपके मुंह से सुनी कि ज़कात भी देते हैं, गरीबों के साथ ताउन भी करते हैं, लोगों की बेटियों की शादियाँ भी कराते हैं। इस पे आपका रोल है, ये तकी साहब खुद खर्च करते हैं या आपने इनको मोटिवेट किया है? नहीं, ये माशाल्लाह से नेक दिल तो पहले ही थे, तो अच्छा। ऊपर से प्लस अल्लाह ने मेरा दिल भी ऐसे बना दिया अच्छा। क्योंकि जब मेरी शादी से पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक था, तो जिन जिन चीज़ों से मुझे सामना करना पड़ा, जिन चीज़ों से मुझे तकलीफ होती थी, तो जब मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। तो फिर मैंने ये सोचा कि किसी की बहन या किसी की बेटी में जो बातें मेरे दिल में आती थी आती होंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की कोई फरमाइश आ जाए, कभी हमने इनकार नहीं किया। ये तो इतने अच्छे थे ही, ऊपर से मैं भी इस तरह आ गई, तो ये कभी कहते थे यार मेरा दिल तो इतना बड़ा था, तुम्हारा तो मुझसे बड़ा है, मैं कभी घबरा जाता हूँ, तो कभी नहीं घबराती। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो उससे खर्च करो, देने वाले साथ तो अल्लाह की, क्या अगर खत्म हो गया तो पहले भी तो अल्लाह ने दिया है, जब नहीं भी था अल्लाह ने सब कुछ दिया, अब अगर चला के गया तो फिर अल्लाह की साथ देगी। तो आप फिर दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए। पैसे से तो एक बस थोड़ी देर के लिए खुशी आती है, आप पैसों के साथ खुश नहीं रह सकते, अपने इखलाक के साथ और लोगों के दुआओं से आप ज़्यादा खुश होते हैं। बहना इसमें तो देखे ना मियां मुबख्श ने शेर लिखा है मियां साहब ने कि माला वाले सखी नहीं होंदे, सखियां दे कोल माल नहीं होंदे, इत्थे उत्थे दोई जहान नहीं सखी कभी कंगाल नहीं होंदी। अच्छा कभी आपको दिल में नहीं आया कि ये तकी साहब जो है कि इस उम्र में 50 साल की उम्र में भी इतना पैसा लोगों को दे रहे, ये रिफाई काउंटर लगाते, जैसे औरतों की नेचर होती कि मेरे हस्बैंड ने अगर किसी पे खर्च कर दिया तो वो अब तो गरीब हो जाएगी। नहीं, मुझे कभी नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इन्हें भी नहीं आया। और इन्हें मैं कहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा दें, हम जो ज़कात देते हैं, जो सदका देते हैं, मैं ये कहती हूँ कि उसमें हमने कोई हिसाब नहीं करना है कि हमारा 5 बनता है या 10 बनता है, उससे डबल दें, क्योंकि अगर हम अल्लाह की राह में गिनने लग गए तो अल्लाह तो हमें कितना देता है, वो बेशुमार देता है। तो अल्लाह की राह में हम कभी अकाउंट करते नहीं देते, जितना आपकी हैसियत है अपनी औकात के मुताबिक आप घर चढ़ते जाएं और अल्लाह आपको उसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। तो तकी साहब इस मसले में मैं एक आपसे और भी डिस्कस करना चाहूँगा कि आपका कंसेप्ट है भी जो सूट आप अपनी माँ के लिए लेकर आए वही अपनी सास माँ के लिए लेकर आए, ज़हन है? बिल्कुल ज़हन है, बिल्कुल ज़हन है। लोगों को पैगाम दे नहीं नहीं बिल्कुल, जो सास है वो भी आपकी माँ है, ससुर आपका वालिद है। सुन्नत क्या है, हज़रत मूसा की ज़िंदगी देखिए आप, हज़रत मूसा ने शादी की है तो अपने सास ससुर की 8 साल खिदमत की है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का देख लें आप, उन्होंने कहा मैं शादी करनी है तो उन्होंने कहा पहले बकरियां चराओ, 7-8 साल चराई हैं, उसके बाद शादी हुई है, 5 साल लड़की वक्त थी, दूसरी भी शादी करनी थी, और 7 साल और करो, फिर 7 साल बाद जो किया फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वो ठीक थी तो उससे शादी की, कहा मेरा ज़हन इससे था, दूसरी से था, उन्होंने कभी दूसरी बेटी से भी आपकी शादी तो लेकिन फिर से आप खिदमत करो, एक का ना रही था एक का ना हाँ। तो बिल्कुल इस्लाम तो ये कहता है कि भाई ससुर कि आप ससुर को माँ अपने ससुर सास को उनकी खिदमत करो। तो इतने पुठारवा शुरू हो गया है, इतने कहता है कि हम कपड़े पवान ते ब्याह करांगे बेसिकली। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਖਾਲੀ नहीं नहीं नहीं, ये तो माशाल्लाह बैग भर के ले जाते हैं। हाँ, शॉपर छोटा होता है। नाजरीन आपको गवाही मिल गई है कि पूरी दुनिया के जो दामाद हैं उनको पैगाम है कि आप जो शॉपिंग करें इन पे अपनी वालदा के लिए वालिद साहब के लिए
वही शॉपिंग करें आप अपनी सास माँ के लिए और ससुर के। और ससुर को भी मेरा पैगाम है कि माड़ा जवाई आवे ना तो तुसी दूरों वेख के नहीं रात को बंदे आ गया वेला मुफ्ती साहब अक्सर तकी साहब ऐसे होता है भाजी कि माड़े जवाई नाल सलूक औरतां नाल होता है, फोन भी नहीं करते कितने पहुंचे हैं, ते तगड़े ਨੂੰ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ आप कहाँ पहुंचे हैं नहीं ये गल हैगी है बंदी साहब, लेकिन मसला ये है कि कई तंग बड़े करते थे माड़े आहो माड़े वो कहते ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁਕੜ ਬਣ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ। नहीं नहीं वो तो फिर माड़िया ने तो माड़िया को कुछ नहीं खवाना, मगर तगड़िया च एक पैगाम जाना चाहिए कि तुसी माड़े जवाई की भी इज्जत होनी हाँ करो बिल्कुल जिन्हें तगड़े जवाई की इज्जत करते। ये ना होवे कि तगड़े दी खापा होन कि शापर च टिक्का बोटी मलाई बोटी देसी अंब सालनी अंब चमसा लंगड़ा दशहरी फजली तोता परी है कि अनवल टोर ये सारे अंब पाए हुन शापर च मैंने पुत्र मां शुक्रे जाए मैंने राती खा भाई मेरा पुत्र है। नहीं ये गल ठीक है, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए है खाली पैसे ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ? जब हमारी शादी हुई तब इनकी दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी इन्होंने शादी के 1 साल बाद थी, तो ये उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया क्योंकि जब हमें विजिट करने के लिए आए तो ये दाढ़ी के साथ आ गए। मुझे दाढ़ी पसंद तो नहीं थी लेकिन फिर मैं चुप कर दी कि अब एक इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसे आप बुरा भला भी लेंगे, ये चीज़ सोच के मैं चुप कर दी कि चलो कोई बात नहीं। आपने उसका देखें फायदा कितना हुआ कि आपने एक मोशी इख्तियार की तो अल्लाह ने आज आपको कितनी फेम दी। पूरे दोनों मियाँ बीवी को पूरी दुनिया में एक शादी के रिश्ते में आप बंदे तो 10 साल हो मगर लोगों को ये पैगाम गया कि उन्होंने इस उम्र में शादी की है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी लोगों की। और वो दूसरा अच्छा काम ये हुआ है कि बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती हैं, फोन करती हैं, ईमेल करती हैं कि साड़ा खौफ मुला को घट हो गया वो कहते पहले एक मौलवी रिश्ता आंदा सी ना ते घर ले इनकार करदे सन, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਲवी ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मौलवी प्यार करते हैं, मौलवी प्यार करते ने, बीवी खुश नजर आ रही है कि चंगी में रह रही है तो एडा खौफनाक काम नहीं हैगा बेसिकली। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਵਾ। ਮੈਂ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਭਾਬੀ ਤਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਘਰ में ये वो थी लेकिन मैं तो बिना व्यक्ति को रिश्ता देता है ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲੀ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਅੰਬਿਆ। ਔਰ ਦਾੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ और अरबी भी इसको अच्छा समझते हैं, ईसाई भी यहूदी सारे लोग दाढ़ी को अच्छा समझते। औरतां साड़ियां चाहिए ये ना कहन दाढ़ी मेरी उम्र बड़ी है हुण देखो साड़ा तक ही बड़ी उम्र का लगता है। दाढ़ी तो शेर दे वाल होंदे ने। हां जी ते दाढ़ी ते मर्द दी निशानी है। हां जी ते मैं यकीन करो जदों मैं दाढ़ी नहीं सी हैगी ना ते मैं वो तस्वीरां देखा ते लगदा कि मैं कुड़ी शक्ल देख रही, यकीन करो बेसिकली नहीं हो ते पता लगता है ना कि तकी साहब खाली एक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਨੀਗੇ तकी साहब एक लोगों ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ कि खैरुकुम लिअहली तुम में से बेहतर इंसान वो है खयारुकुम लिलसाइल कि जो अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करते हैं। ये हदीस है तो सारी दुनिया को पैगाम है कि देखें आप जब घर में आए तो अपनी बीवी के साथ किचन में टाइम दें, ड्राइंग में टाइम दें, बैठें गप्पे लगाएं, उनके साथ आप काम कर दें जैसे मैं और गौरी झंडे जिस दिन चटनी बना ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं लेकिन माशाल्लाह हेल्प करते हैं मेरी किचन में, अगर कोई पार्टी में घर खाना बना रहे हो तो साथ सैंडविच बनाने नहीं तो कहना कभी आप बीमार हो तो इन्होंने कभी खुद चाय बनाकर मेडिसिन आपको दी है? जी बहुत दफा मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे पता है मैं लेके आते हैं चाय, ठंडाई का टाइम हो गया चाय ले लो फटाफट। मैं लोगों ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਏ
ते चाह का कप बना के क्या करो मेरा चन्न मेरी मान पीला। ये तो मतलब इतने अच्छे हैं बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों के फीडर भी रात को जब बच्चे उठते हैं तो फीडर क्या बनाते थे, मैं तो सोई रहती थी तो मैंने कभी मुझे उठाया भी नहीं। तो बच्चे ने फीडर पीना चाहते थे, दूध गर्म किया, बच्चे का फीडर लिया, बच्चों को देख के लिटा के, और माशाल्लाह ये रात को जब भी आंख खोलती है जाते हैं बच्चों की, मुझे इतनी फिक्र नहीं होती, बच्चों के कमरे चेक करते हैं सर्दी तो नहीं लग रही, गर्मी तो नहीं लग रही। तो ये तो माशाल्लाह इतना घर में ख्याल करने वाले मेरा भी और बच्चों का भी। तो ते कदी तकी साहब साडी भैन रुस के गई हो तुसी बनाउन गए? नहीं एनी नौबत कभी नहीं आई, एनी दूर तक नौबत कभी नहीं आई मेरी- नहीं, वो मैं सोचती हूँ कि पहले तीसरी गई थी तो मैं आ गई तो मैंने नहीं जाना। नहीं मेरी हिसाब ला लो कि 11 साल एक दफा बेगम नाल जड़ी नाराजगी नहीं हुई, कोई घरों उधरों लैन आया या रस के गई है। लोगों को पैगाम है कि 10 साल जिंदगी की कामयाबी तुम्हारे सामने